All right, hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, Good morning, sir. Good morning. Good morning. ये हो गया ना सबका So last class में हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन हुआ था एंड मैंने आई थिंक ये वाला एग्जांपल आप लोगों के साथ में लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नोट्स छोड़ दिया था. इन द मीन टाइम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताओ क्या रहेगा. विल इट बी दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर? दोनों के बीच का अंतर समझ में आ रहा है? नहीं सर. Yes, हाँ sir. सर. हाँ एक दिख Outside the plane एक जा रहे और 2D एक एक 3D plane. है. सर इन द लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड पे वो भी आउटसाइड इनसाइड होना चाहिए ना. सेम हो गया ना फिर तो सेम ही हो गया ना. मतलब द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग इज द मॉलिक्यूल प्लेनर. जो पहला स्ट्रक्चर है वो तो नॉन प्लेनर है. हाँ हाँ. सर. Yes. अच्छा ओके सर यस अंडरस्टूड. दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है. Yes, sir. Now VSEPR is not able to distinguish between the two, but VBT should be. तो आप लोग थोड़ा VBT का पर्सपेक्टिव यूज करके मुझे बता पाओ क्या रहेगा आंसर. सर नॉन प्लेनर है. चैट में सब चैट में आंसर दो. All right. The correct answer is left वाला, the non-planar one. Now, Yes, sir. How? अब वो क्या और क्यों आंसर है उसके पीछे भी थोड़ा सा सोचो. जिनका प्लेनर रहा है आंसर वो गलत है. तो अब आप आइडेंटिफाई करो कि क्यों गलत है और क्या करना चाहिए हमें to in order to change that. Sir, I just have a question. Sir, can we like normally explain some questions like this? We can say that if they're in the same plane, then there will be kind of a constrained angle between two atoms. What kind of constrained angle are Sir, you? like the angle between F and F in the left hand side, like the left hand side F and the right hand side F is greater compared to the right hand side wala structure. So that's why repulsions will be less. I don't know if it is correct. I'm just asking. No, वो anyways काफी दूर दूर हैं, but ठीक है. Point taken. Okay, sir. So can you explain how it's non-planar? Yes, sir. Discuss करते हैं. So answer lies in understanding how the orbitals are overlapping. आपको समझ में आएगा. थोड़ा बड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. Now 3 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर. By looking at their Lewis structure, we can come up with their hybridization. Yes, sir. Yes. ये वाला sp hybrid है. राइट हैंड साइड वाला भी और Yes, लेफ्ट sir. हैंड Both साइड are वाला भी sp2. sp2 है. Yes, sir. तो प्लेनर शेप के होते हैं. तो ये आपको क्लियर है? Yes. Because if you look at यहाँ पर like on the central carbon atom there is 2 sigma bonds and Yes, sir. And zero zero lone pair. Yes, sir. यहाँ पर 3 sigma bonds Sigma bond 0. 0 lone pair. 3 sigma bonds 0 lone pair.
अब if I look at the middle carbon atom, तो यहां पर एक s के साथ में एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ है. Now what p orbital should I take as the orbital undergoing hybridization? Z. तो PZ. The pz orbital. अगर मैं इसको z axis मान लेता हूं, ठीक है, this is my choice, no? What is it that I should consider as z axis, Yes. right? So यहाँ पर थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, अदरवाइज वो फ्लोरीन ड्रॉ करने की जगह नहीं बचेगी. I am assuming this has to be z axis. This is my choice. ठीक है, ध्यान से नोटिस करना. एंड ऊपर वाले को आप x एक्सिस बोल दो, और फिर अंदर बाहर वाला कौन सा हो जाएगा? y एक्सिस, राइट. नाउ अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बनने हैं सेंट्रल वाले कार्बन एटम के, ये तो अलोंग द z एक्सिस ही बनेंगे, Yes. है कि नहीं? Yes, sir. So which p orbital should undergo hybridization for the central atom, central carbon atom? PZ. Pz. Right. So यहाँ पर what I can do is I can write that for central carbon atom, pz orbital undergoes hybridization because we have taken z axis as internuclear axis, all right. तो यहाँ पर what are the pure atomic orbitals? एक px Px, पी वाई रहेगा. Yes, sir. अच्छा, अब आपने नोटिस किया होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन के साथ में एक पाई बॉन्ड बनाना है, Yes, sir. हाँ सर. राइट हैंड साइड वाले के साथ में भी बना रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ में बनाना है. और ये जो पाई ऑर्बिटल है, सॉरी पाई बॉन्ड है, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनाएंगे. Yes, sir. Yes. राइट. तो यहाँ पर आपने नोटिस करा आई हैव अ चॉइस कि मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को कौन से प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में पाई बॉन्ड बनाऊं. Sir, either of PX or PY. So let's take a choice. I'm taking a choice LHS carbon and middle carbon, central carbon का pi bond is PX का pi bond. चॉइस है, मेरी इच्छा है, मैंने ले हाँ लिया. चलेगा. वो कुछ और भी ले सकता था, बट मैंने ये अज्यूम कर लिया. Yes, sir. तो इसकी वजह से अब जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है उसके पास में कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा? PY. py ही बना पाएगा. लाइक दैट इज नाउ the only constraint or the only option left, right? So if I took this choice, then the constraint that came was right hand side carbon and central carbon ka pi bond is py. Yes, sir. Right? Based upon this, यहाँ पर अब हम कह सकते हैं thus we can
से जो लेफ्ट हैंड साइड कार्बन है is sp2 hybrid with py and pz Yes, sir. Yes. as py Yes, sir. is or px is forming pi bond, है कि नहीं? Sir, ये समझा इस बात का. sp2 है ना, लेफ्ट हैंड साइड Yes. कार्बन एटम Yes, sir. sp2 है, और उसमें हमने ये देख लिया कि प्योर तो px रह गया, तो हाँ सर. बाकी जो दो हैं वो हाइब्रिड हो गए ना. Okay, sir. Right, sir. py and pz are going to be hybrid undergoing hybridization. तो ये Yes, जो sir. लेफ्ट हैंड साइड के फ्लोरीन एटम्स है वो कौन से प्लेन में रहेंगे? Will be YZ plane. in YZ. YZ plane, Yes, sir. राइट. तो यहाँ पर ये जो मेरा YZ प्लेन है, ये अंदर बाहर वाला, right? ये एक बाहर आ रहा है फ्लोरीन और एक अंदर जा रहा है, इस प्लेन में रहेंगे, YZ प्लेन में. Yes, sir. Yes, sir. और राइट हैंड Yes. साइड में कैसा हो रहा है? राइट हैंड साइड कार्बन एटम के लिए अब आप कह सकते हो विच इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसके लिए आप क्या कहोगे? PX PZ. इट इज गोइंग टू बी हाइब्रिड विद Yes, sir. PX px and and pz Yes, sir. as py is Yes. forming pi bonds, yes, Yes, sir. राइट. सो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड के फ्लोरीन है वो किस प्लेन में रहेंगे? XZ plane. XZ plane. विल बी इन द xz प्लेन. तो अब आपको समझ में आ रहा है ये नॉन प्लेनर कैसे हुआ मॉलिक्यूल? हाँ सर, प्लेन से बदल गया. Sir, Hmm. sir, I had a question over here in the LHS and RHS atom, what you wrote. Mhm. Sir, like what will be the shape of orbitals? Like when we drew sp3 hybrid orbitals shape, we had the one small lobe, one big lobe, and that was in a trigonal planar arrangement, right? Correct. Sir, so over here, if we try making the arrangement, because px is already forming a sigma bond with the another pz orbital, Mhm. so then like how will we draw the structure for like the entire देख लो orbit? ना, ये सेंट्रल कार्बन एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए. Oh yes, I forgot to consider sp. ठीक है. हाँ समझा. फिर ये इसके प्योर एक px हो गया Yes sir, px, pure px py. और एक py हो गया, है ना. Yes sir. और ये sp हाइब्रिड थे, राइट. जो py है वो अंदर बाहर जा रहा है. अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है उसके लिए नोटिस करना, ये उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया Yes, sir. और बाकी दो कैसे रहेंगे? ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में. Yes. बट कौन से प्लेन में? YZ. YZ प्लेन में. ठीक है. मतलब यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला ना कि px और px का पाई बॉन्ड बन रहा है, Yes sir. Yes, sir. इसका px और इसका px आपस में पाई बॉन्ड बना रहा है. तो ये जो लाइक थोड़ा सा ऐसा 3D, like this is, you can say, Yes sir. They're sleeping. coming out and this is Going. going in, right. ये sp2 hybrid orbital समझ में है. Yes, sir. Yes. And what about the right hand side वाला carbon atom? Sir, over ये भी there, Z plane will be. ये एक sp2 hybrid कार्बन हो गया. अब यहाँ पर जो प्योर था वो कौन सा था? py. 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 ठीक है. ये py is making a pi bond. ठीक है.
तो ये जो Sir, and then in the vertical plane we have two orbitals. करेक्ट, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में you have the other two sp2 hybrid orbitals. Clear हो गया? Sir, so we can have a sigma bond between hybrid orbitals like sp sp2. हाँ, of course, why not? Okay, sir. ठीक है? तो यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड बनेगा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बाद में। There is nothing like पहले बाद में। It is just that अगर हम लोग कुछ चॉइस लेते हैं, यस सर, so that choice also has some constraints, and based upon that the overall shape of the molecule is coming out. ठीक है सर, ठीक है? यस। एक बार देख लो, समझ लो, अगर किसी में कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो। क्वेश्चन ये था that whether the molecule is planar or not. अब VACPR के हिसाब से it doesn't come out clearly, क्योंकि VACPR के हिसाब से ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। But when we look at the orbitals का overlap through VBT, we understand that this molecule is going to be non-planar. The fluorine are going to be in different planes, and that we understand by the formation of the sigma and the pi bonds, what kind of orbitals should overlap and what should be the overall structure of the molecule. Clear है ये? Sir, so while finding out the shape of the molecule, we, after considering the hybridization, we have to look into the planes also, right? Because ऐसा possibility. This is something which is going to be when you have more than one central atom. अगर एक ही central atom है तो आप VACPR से करो कि हाइब्रिडाइजेशन से करो, सबसे आंसर कोई दिक्कत गड़बड़ वाला नहीं आएगा, सब में सेम ही रहेगा। बट जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो जाते हैं, ठीक है, then there are some finer differences which VACPR isn't really highlighting, which come as an outcome of thinking from the perspective of orbitals का overlap. ठीक है, clear है ये? So can you re-explain the visualization again, just once in short? ये वाला ऑर्बिटल Yes, sir. हाँ, देखो ना, इसमें सबसे पहले अपन ने एक एक करके ये समझना, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्लो में सीक्वेंस में नहीं चलोगे तो फिर आपको एक साथ पूरी चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लो स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, राइट। लो स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे पता है कि क्या सिग्मा बॉन्ड्स और क्या पाई बॉन्ड्स है। yes, sir. नाउ देयर इज अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई ऑलरेडी नो, दैट जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और पाई बॉन्ड्स जो है वो कौन बनाना था मेरा, प्योर Pure orbitals बनाते हैं. राइट। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ध्यान में रख के आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि ये जो सी के अराउंड नोटिस कर रहा हूं मैं, दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये जो दो पाई बॉन्ड्स हैं ये मेरे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। सो ये मेरा स्टार्टिंग थॉट प्रोसेस था। अब मैंने इसके बाद सोचा कि कौन से ऑर्बिटल्स ये बॉन्ड्स बना रहे होंगे, तो फिर मैंने शुरू करा कि ये पहला वाला sp हाइब्रिड है, तो इसके दो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। फिर जो px और py है वो मेरे पाई बॉन्ड बनाएंगे। Yes, sir. अब px वाला एक तरफ बनाएगा तो py वाला दूसरा तरफ बनाएगा। Yes, sir. And फिर जो टर्मिनल वाले हैं उनका डिफरेंट प्लेन्स में फिर बन जाएगा रेस्पेक्टिवली। करेक्ट। अगर यहाँ पे px पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इस वाले कार्बन का भी px प्योर रहना चाहिए ना, तभी पाई बॉन्ड बनाएगा। हाँ, तो इसके हाइब्रिड कौन होंगे, px और सॉरी py एंड pz। yes, sir. तो मतलब py pz अगर हैं तो यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स py pz यानी कि yz प्लेन में होंगे, YZ प्लेन में बनेंगे, फ्लोरीन भी हाँ. जो है yz प्लेन में प्रेजेंट होंगे। And similarly उसके लिए x वाला बच जाएगा, x and z. करेक्ट। Okay, sir. Thank you. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आप लोग प्रैक्टिस करो। एक सेकेंड। हाँ,
अब इसका आंसर मुझे आप बताओ, whether this is planar or not. सिमिलर थॉट प्रोसेस से जाओ जैसे हमने थोड़ी देर पहले सोचा. सर हम एक्सप्लेनेशन भी लिखे क्या चैट में कि कैसा आया? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. आप मतलब इन जनरल भी सोच के समझ के सोच सकते हो क्या रीजन रहेगा, व्हाट शुड बी द अंडरस्टैंडेबल रीजन बिहाइंड दिस. Right, so correct answer is planar. Wait. अरे मजा आ गया. क्यों हाँ भाई? सर प्लेनर ही है. क्यों ज्यादा मजा आ गया? तो हर कार्बन के बाद सर ट्रेन छूटने वाली फीलिंग आई. So यहाँ पर प्लेनर क्या? सर मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था सर. कोई नहीं, ठीक है, और मौका मिलेगा तुम्हें भी आगे. ओके सर. तो इसमें हम लोगों को कैसे जज करना है? अगेन आप सिमिलर थॉट प्रोसेस पे जाओगे. जैसे यहाँ पर मैं अगर ऑब्जर्व करूं कार्बन 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 कार्बन, राइट. अब ये जो बीच वाले कार्बन है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP. sp. Like if I assume this to be the z axis, then there is no choice but to assume कि ये जो बीच वाले कार्बन हैं उनका pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करा होगा. Yes sir. Z. If I consider this to be the internuclear axis, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो बनने हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बनाने हैं, Yes sir. राइट. और ये कौन बनाएंगे? PZ. PZ और pz ऑर्बिटल बना रहा है, राइट. तो यहाँ पर ये spz और spz बोलते हैं, राइट. अब इसमें प्योर क्या क्या रहेगा? एक px रहेगा और एक py रहेगा. PX and PY. इधर भी px और py रहेगा, राइट. अब इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बनाने का है मिडिल Yes, कार्बन sir. एटम्स में. Yes, कौन सा बनाऊं? px बनाऊं कि py बनाऊं? PX. PX. चॉइस है आपके पास में. लेट से आपने यहाँ पर px के बीच में बना लिया, तो अब ऑटोमेटिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो py ही बनाएगा. Yes, sir. हाँ यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा ये py ही बनाएगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो py ही बना रहा होगा. सर हम PY भी ले सकते थे ना? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. अब गिवन कि यहाँ पर ये py है तो फिर ये जो sp2 है YZ प्लेन. कौन से px और pz हाइब्रिडाइज हो रहे होंगे, Yes. Yes sir. राइट. तो ये जो फ्लोरीन रहेंगे यहाँ पर ये एग्जैक्ट प्लेन में रहेंगे, Exact plane. Yes. Sir. Yes. राइट. ये जो फ्लोरीन आए ये आपके एग्जैक्ट प्लेन में रहेंगे. एंड व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड आल्सो?
The same. Exit. Same plane. XZ plane में. यहाँ पर भी py प्योर है, Yes. so it is px and pz that are going to PZ. undergo hybridization, and as a consequence यहाँ पे जो फ्लोरीन रहेंगे वो भी XZ plane. XZ plane. नहीं रहेंगे, राइट. तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या आ गया मेरा? तो प्लेन का प्लेन आ गया ना? प्लेनर आ गया, सबका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एग्जैक्ट प्लेन में ही आ गया. हाँ सर, पूरा पूरा एक ही में आ गया. क्लियर है एग्जांपल भी? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. आई थिंक अब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो. तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या C6H6 बेंजीन याद है? है? हाँ Yes, sir. उसका Resonator. हाइब्रिड resonance था ना? स्ट्रक्चर, सर उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर था ना. राइट. सो बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल. Sir, you chose resonance, right? हाँ, आप कोई सा भी एक कैनोनिकल फॉर्म ले लो, ठीक है. बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल. ये चीज आप विजुअलाइज करो आप थ्रू ऑर्बिटल्स का ओवरलैप. ऑलराइट, सो आप लोगों ने सोचा यस सर. इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से रहता है. Alternating carbons पे double. राइट. ये आपका C2H6 का स्ट्रक्चर रहता है. यस सर. C6H6. ऐसे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है. नाउ यहाँ पर all the carbon atoms are sp2 hybridized. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. Yes, sir. राइट. तो यहाँ पे आप नोटिस करना कैसे all atoms are in same plane. राइट. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्लांट सा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए. मान लो ये एक कार्बन है, इसका ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट हुआ. यस सर. ये Yes. हाइड्रोजन बाहर की तरफ और ये दोनों कार्बन कार्बन के साथ में हाँ, 120 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर इसका p ऑर्बिटल रहेगा. सर कोई भी एक पी. ठीक है. फिर ये वाला जो कार्बन है इसका भी सेम ही p ऑर्बिटल रहेगा. यस सर. इनके बीच में पाई बॉन्ड अगर फॉर्म होना है तो, राइट.
थोड़ा सा मैं ऐसे एक टेढ़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ. सिमिलरली बाकी कार्बन एटम्स के बीच में भी ऐसा रहेगा. Yes, Right? sir. So you could have drawn pi bond between this and this in this way, right? हाँ सर बन या Yes. फिर आप इन पाई बॉन्ड्स को डीलोकलाइज कर सकते हो, इनका लोकेशन चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पर बोला जाता है ऐसे देयर इज अ रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ऊपर भी हाँ पीछे भी. हाँ सर रिंग ऑफ फायर. ठीक है. एंड दैट एंटायर मॉलिक्यूल जो है दैट इज समथिंग व्हिच इज इन द सेम प्लेन. So, but if we Sir, but want what about the one double double bond? bond, we can have some other also, right? इफ यू हैव Like व्हाट, the other axis. दोबारा बोलो. So, if we want, then in one double bond, we can have the other axis also, right? Pi नहीं bond. नहीं पॉसिबल. Why? So it's a choice, right? Which axis to take the double bond. आप पहला चॉइस जैसे ही बना लोगे बाकी चॉइसेस कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. करके देखो ना. Sir, या alternate sigma bond नहीं आना चाहिए. सिग्मा बॉन्ड तो सबके बीच में ही है ना. लाइक these are all 6 sigma bonds between the 6 carbon atoms. Yes, sir, and there will be only 3 pi bonds. हाँ. तो जो 3 pi bonds है यानी कि जो 6 pi electrons है they will be delocalized. ठीक है. ड्यू टू रेजोनेंस जो हम लोग पढ़ते हैं we'll say that these are So, delocalized. मतलब they can be found in any of the 6. Yes, any of the 6 नहीं. Their probability is distributed throughout these 6 p orbitals. Okay, sir. Delocalized pi electrons. Sir, just one random question. Bonding theory we can read from J.D. Lee, right? Selectively, yes. Okay, sir. Acha. What about C6H12 cyclohexane? इसमें कैसा रहेगा? Sir, sp3 hybridized. Sir, it's not planar. Sir, non-planar because sp3 hybridized directly. Yes. Correct. तो यहाँ पर all carbon atoms are sp3 hybrid, right? And as a consequence the molecule is non-planar. ठीक है. Even यहाँ पर the carbon atoms are not in same plane. मतलब someone might try to draw this kind of a diagram. Yes, sir. आप ऐसा कोशिश कर सकते हो ना. हाँ सर. 6 कार्बन है सेम प्लेन में और फिर हाइड्रोजन को आप ऐसा बोल दो कि एक बाहर है और एक अंदर है. एक बाहर है और एक अंदर है. समझ में आ रहा है कुछ? नहीं सर, कार्बन भी सेम प्लेन में नहीं होगी ना. कार्बन भी सेम प्लेन में नहीं. ठीक है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द correct representations. Can anyone tell me why this Sir, is not going why to... I didn't understand what's wrong with this. How could you just look at the hybridization? ये and 120 say degree whether का the angle जो molecule- है that is not supported by sp3 hybridization ना. हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना है और सेम प्लेन में नहीं. Right? What is the preferred angle for sp3 hybridization? 109 degree dot. 109. 109 डिग्री. तो एक्चुअली में इसका शेप जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है that it tries to acquire as much as possible configuration. ठीक है. ये जस्ट ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है. नॉट समथिंग which you will be able to understand or draw right now. बाद में जब आपको
ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तब आपको पता पड़ेगा. जस्ट मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर दिया that the carbon atoms are not in the same plane. जो काले काले हैं वो कार्बन एटम्स है एंड जो ब्लू एंड रेड है दे आर हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नॉन प्लेनर सा स्ट्रक्चर होता है सो एज टू मेक श्योर दैट हर एक कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल कॉन्फर्मेशन या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज बीइंग फॉलोड. ठीक है, नॉट आइडियली बट टू सम एक्सटेंट. समझ में आ रहा है ये? अच्छा सर, सर तो बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है. हाँ, कंफ्यूजिंग है ही सही. सर यहाँ पे 2 ही बॉन्ड सेम प्लेन में ना मैक्सिमम. Four carbon atoms are in the same plane, right? नहीं, ऐसा like you can try to draw a plane which can take So it will maximum accommodate number of 4, but so 3 carbons will be in the same plane, right? तीन तो कभी भी any three at points are in a plane. 3 points in a plane is वो तो मैं कोई से भी बोल सकता हूँ ना, मैं ये प्लेन बना दूंगा, ये जो लाइक ये हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको इंक्लूड करता हुआ एक प्लेन. तो any 3 points are always in same plane. सर ये लाल में कौन से एटम्स हैं? हाइड्रोजन. और सर ये ब्लू में? हाइड्रोजन. hydrogen. अच्छा वो भी हाइड्रोजन थी. हाँ, ठीक है, आप बाद में पढ़ोगे. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इसमें भी. ठीक है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है बट यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ. रेफर कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, उस टाइम पे आपको ये चीजें और देखने को मिलेंगी. यस. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है ये? हाँ सर. हाँ, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे. अच्छा चलो, थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और एक्सप्लोर करो मेरे साथ में. ICl2 माइनस, इसमें what will be the hybridization of iodine and what will be the shape of the ion? Sir, sp hybridization. चैट पर, एंड वो भी गलत आंसर मत दो. अगेन लुईस स्ट्रक्चर पहले बनाओ सही से. दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ड्राइंग अ प्रॉपर करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर. ऑलराइट, क्या क्या आ रहा है? sp3d hybridization. शेप के लिए थोड़ा सा टाइम. आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स. 7. Yes, sir. एक और नेगेटिव मान लो उसी के पास में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. यस राइट. और 8 में से उसने 2 यूज करके क्लोरीन के साथ में सिंगल Yes, बॉन्ड sir. बना लिया. Yes. राइट, सो यू हैव 3 लोन पेयर 2 2 सिग्मा sigma bonds. 3 लोन पेयर. 3 lone pair implies sp3d hybridization हो गई. यस सर. Sir. राइट, सो ये आयोडीन है एंड आयोडीन के अराउंड यू हैव इक्वेटोरियल पोजीशंस Yes, sir. एंड एक्सियल पोजीशंस. राइट, अब हमने क्या क्या सीखा था? थोड़ी बहुत VSEPR की लर्निंग. Lone pair को lone pair equivalent on positions पे equal रखेंगे. It over here.
right? Lone pairs go at the equatorial positions, Yes, sir. right? And the chlorine atoms, the more electronegative atoms, they go at the Axial axial position. position, right? So ये कैसा आ गया? Linear. Yes, sir. Yes, sir. Sleep आ गया friend? Yes, sir. 120 degrees Yes, sir. Lone pair cancel out is not current there. zone. One pair cancels out each other. हाँ. ठीक है? All right. I2Cl6. Comment on the hybridization of iodine atoms and the shape of molecule. Comment on hybridization of iodine atoms and shape of molecule. सर डाउट है पूछो बोलो बोलो. सर ICl2 माइनस में क्लोरीन एटम्स दोनों क्लोरीन एटम्स z एक्सिस के अलोंग लाइक pd के साथ बॉन्ड पेयर करेंगे ना आयोडीन के pd हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में ओके सर क्षितिज दोनों से सेम ही आंसर आता है. इसमें मैं लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करूं थोड़ा सा? नहीं सर. नहीं सर, नहीं कोशिश सर करते बनाने हैं. दो. तो होगा. 30 सेकंड दीजिए ना थोड़ा सर सा बस. हेल्प कर देते हैं. ये जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहता है. ठीक है, दिस इज द लोएस्ट स्ट्रक्चर. हैं ये क्या है? डायमर Okay, diamond. तो Al2Cl6 कैसा है? जैसे Al2Cl6 था ना, Yes. हाँ सर मतलब यहाँ पर जैसे ये एक ICl3 का मॉलिक्यूल था. ठीक है, Sir, why don't we expand octet? हाँ सर ये ये एक और ICl3 का मॉलिक्यूल Yes, है. Three sir. chlorine atoms on iodine and then a double bond between. yes sir something double Yes, like bond that. sir. between them. That's how. triple bond Yes, That's sir. how That's I how yeah. the first thing that comes is that. yes sir First thing that comes to your यहाँ mind. पर ये जो क्लोरीन अपने लोन पेयर जो है आयोडीन के वीकेंड ऑर्बिटल में शेयर कर देते हैं. Sir. हाँ. Sir, why can't we make a double bond between iodine and iodine? वेल ये वो एक्सेप्शन वाला केस है ना जो सर ने अलग से बताया था. एक्सेप्शन वाला केस तो नहीं बोलेंगे इसको, बट द थिंग इज दैट यहाँ पर व्हेन यू अगेन So is it the Take an attempt. properties are being explained? हाँ, when you take an attempt and try to come up with like double bonds in this lowest structure or in this particular example, they don't really explain the properties of the molecule. So how will we know that? ऐसा नहीं Yes. पता पड़ेगा आपको. सर याद रखना है ना तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए हेल्प के लिए मैंने इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर आपको एज अ हिंट दे दिया. ठीक है, आप इसका सर- क्वेश्चन का हिंट मान लो that this is a lowest structure for you. अब based upon this, now go ahead and comment. सर इसको Al2C6 के जैसे एक्सेप्शन याद रखना है क्या Sorry. सर जैसे Al2C6 याद करा है उसका लोएस्ट स्ट्रक्चर वैसे इसका करना है क्या हाँ, ओके सर क्लास नोट्स में जो मैं कराता जा रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही सही ना आपके लिए. यस सर Sir, do we do this to avoid having a lone pair in iodine or like
Any नहीं, लोन other? पेयर तो अभी भी है ना। लोन पेयर है अभी भी। Yes, sir. हाँ भाई Properties aren't being explained using the other structure. And we don't know why and all. Sir, done. Right, so by looking at the lowest structure, आपको hybridization तो समझ में आ गई? Yes, sir. Right, so when you look at the iodine atom, 3D उसमें कितना 4 sigma sigma bond. bond? Octahedral बनता है, yes. Yes, sir. हाँ sp3 सर हाँ hybridization. So when you now draw the diagram of it, it comes out to be a planar molecule. कुछ इस तरीके से. Right? ये एक आयोडीन एटम के अराउंड sp3d2 अरेंजमेंट रहेगा. अब लोन पेयर आपने कहीं पे भी डाल दिया पहला वाला, तो दूसरा वाला उसके ऑपोजिट ही डालना, हाँ. ताकि रिपल्शंस कम से कम हो. राइट, एंड सेम विद द अदर आयोडीन एटम एज वेल. अगर ये वाले क्लोरीन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए हैं, तो द लोन पेयर्स कांट बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन नाउ, दे हैव टू बी इन द vertical plane only. Right, so it is a planar molecule. सर ये 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे आ गए? कहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए? सर ये स्टेरिक में आपने लिखा है ना आयोडीन का. तो ऊपर देखा ना आपने लो स्ट्रक्चर. हाँ Yes, sir. सर, मुझे तो Single और 6 double. सिग्मा बॉन्ड है. अरे डेटिव बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड ही लेते हैं ना. Yes, sir. हाँ तो सिग्मा बॉन्ड ही तो है. एक मिनट रुको. ठीक है, क्लियर है ये? सर Yes, ये sir. सर ये सिग्मा बॉन्ड, ये में 6 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पर 4. सॉरी, ये एक आयोडीन पर लेना है. समझा नहीं मैं तुम्हारा क्वेश्चन अभी भी. तुम एक बार. तो तू 6 कैसे गिन लिया? कहाँ पे 6 गिना? अच्छा सर, सर आपने से एक ही आयोडीन का लिया है क्या? तो ये स्टेरिक में. हाँ, एक ही आयोडीन का तो लूंगा ना मैं. हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp3d है ना. हाँ सर. और each iodine atom, this is what I have done. ठीक है सर, सब मिल गया सर. Sir, done. So I had a general doubt. हाँ बोलो. So how will we determine the Stenick number for all electron species? It will be a challenge. We'll talk about it. It is going to come. करेंगे उसके बारे में बात. So what was the question? Odd electron species में. Odd electrons. अच्छा, चलो थोड़ा सा Al2Cl6 का भी एग्जांपल एक्सप्लोर कर लेते हैं. आप लोगों ने अभी Al2Cl6 का लोएस्ट स्ट्रक्चर याद है? हाँ सर, सेम टू यस सर. सेम लो Sir, ऐसे ही होता है. ये मैं भूल गया एक बार structure है बता दो. इसका. बस लोन पे नहीं होता. ओके. ठीक है. What will be the hybridization of aluminum? sp3. Yes sir. SP. sp3 tetrahedral. Comment on the hybridization and shape of molecule. Hybridization. बस प्लेनर नॉन प्लेनर बोल रहे हैं ना इसमें.
and shape अरे of शेप ना तो जैसे लीनियर नॉन ली ऐसा वी शेप Molecule. बेंट. ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आप हाँ मतलब अभी के लिए ये कमेंट कर दो मुझे दैट इज इट प्लेनर और नॉन प्लेनर. Non-planar. Non-planar. Non-planar, sir. Non-planar. If non-planar, then maximum how many atoms are in the same plane? 4. 4 atoms, sir. 4 atoms. So 3. Sir, 2. 3. भाई 3 Three. अभी तो सर ने बोला कोई 3 तो कुछ हमेशा तो 3 होंगे हमेशा ना. होंगे. 2 सर. 2 तो हो ही नहीं सकता. अरे 2 कैसे? 2 नहीं है क्या? 2 वाला कौन था? 2 वाला वैसे कौन था? सर शार्वेल. शॉर्नप्रीत. 5. नहीं, 6 will be the correct answer. हाँ, right अनु. Right तन्मय. Right है आती. सर वो Cl atoms है क्या सेम प्लेन में सारे? तो इसमें चलो शेप के पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज इस एग्जांपल में नोटिस करना. दिस इज एन एग्जांपल इन विच वेकेंट ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, सो इफ यू लुक एट द ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल्स का डायग्राम तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा. What do I mean by this vacant orbital hybridization? So aluminium का एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3s2 3p1 ग्राउंड स्टेट. अगेन अल्यूमिनियम को 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाने ही थे विद 3 क्लोरीन एटम शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, तो एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन में आया. Yes. राइट. एंड यहाँ पर आपने नोटिस किया था that for aluminium the steric number is coming out to be what? 4. 4. Sigma is 4, lone pair is 0. 0. Implies कौन सा hybridization? sp3. sp3. तो sp3 हाइब्रिड के लिए यहाँ पर as you can see ये जो vacant orbital है this is also undergoing hybridization. यस सर, जाना पड़ेगा. हाँ सर. ठीक है, सर फिर से एक्सप्लेन Yes, कर sir, yes. यहाँ पर आपने बेस्ड अपॉन द लोएस्ट स्ट्रक्चर मुझे बताया कितने सिग्मा बॉन्ड कितने लोन पेयर हैं ऑन एल्यूमिनियम एटम और उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दिया sp3. यस सर. अब मैं ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ थ्रू दिस बॉन्ड एनर्जी डायग्राम जो मैं करता आ रहा था लास्ट क्लास में. यस सर. तो यहाँ पर what I find is that I have to take into account even the vacant orbital into hybridization. Yes. Yes, sir. sir. Yes. Right. So this is actually to highlight a point जो मैंने आप में से किसी ने डाउट भी पूछा था लास्ट क्लास में एंड मैंने वो चीज बताया भी आपने था पॉइंट आउट किया था that when we are discussing this concept of hybridization, right, उसमें हम लोगों ने वो पॉइंट कहाँ गया? Yes, sir. I remember. मैंने पूछा था. It is the orbitals that undergo hybridization and not the electrons, right? So it doesn't matter whether an orbital is half filled or full filled or vacant. That will not matter. ठीक है? So this is an example where you can say vacant orbital of aluminum is undergoing hybridization. तो ये 4 sp3 hybrid orbitals हो गए. अब ये 4 sp3 hybrid orbitals क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, राइट? तो ये जो 3 अल्यूमिनियम क्लोरीन के हैं ये तो हमारे नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बन गए, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट? और ये जो एक वेकेंट वाला है ये क्या करेगा? Dative. It is going to receive 2 electrons from the chlorine atom in a sigma manner.
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, सो क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके लोन पर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सिग्मा मैनर में, हेड ऑन मैनर में इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में शेयर कर देगा। ठीक है, सर मींस ये वेकेंट वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यस शेयर कर। ओके ओके। अब इस मॉलिक्यूल की 3D ज्योमेट्री भी नोटिस करना, मतलब एल्यूमिनियम के अराउंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा। हाँ सर रहेगा। यस सर, sp3 यस। है ना, सो यहाँ पर व्हाट वी एक्चुअली फाइंड इज, नोटिस करना, द 3D ज्योमेट्री इज समथिंग इन दिस वे। ये एल्यूमिनियम है, अब इसके अराउंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो ये 2 लेफ्ट वाले क्लोरीन तो सेम प्लेन में रख लिया, यस हाँ सर। और फिर एक दूसरे बाहर की दोनों- तरफ और एक अंदर की तरफ, यस राइट। वैसे ये राइट हैंड साइड वाला एल्यूमिनियम होगा, 2 क्लोरीन आइटम सेम स्क्रीन के प्लेन में रख लिए, और फिर एक क्लोरीन वाला बाहर की तरफ, एक क्लोरीन वाला अंदर की तरफ। ये समझ में आया? सर तभी मैक्सिमम तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना एक प्लेन। नहीं, तो अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करो कितने एटम सेम प्लेन में है। जो स्क्रीन का प्लेन है उसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं? सर उसमें अच्छा ही तो ना। जो एल्यूमिनियम 5 6 यस सर। टर्मिनल क्लोरीन एटम्स हैं और एल्यूमिनियम है, दे आर इन द सेम प्लेन। और 2 यस सर यस। एंड जो हाँ, ब्रिज सर। क्लोरीन एटम्स है, इनको ब्रिज क्लोरीन एटम्स कहेंगे। एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, हाँ सर है। राइट। दिस इज लाइक कमिंग आउट यस सर। हाँ सर। एंड दिस इज लाइक गोइंग इन। यस समझ में आया ये? हाँ सर आ गई। सर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में कैसा रहेगा डायग्राम? ऐसे ही रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। सर बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट डी ऑर्बिटल हाँ। मतलब sp3 बनाने में। नहीं नहीं, टेट्राहेड्रल रहेंगे बस। लाइक यहाँ पे आपको एक बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब बनाना है बस, और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रहेंगे। अच्छा, अब नोटिस करना थोड़े से और एग्जाम्पल्स जिसमें you will have to tell me the hybridization and the shape of the ion. So let me take these examples. तो यहाँ पे एज अ नोट रीड करना, ठीक है। इट्स मोर लाइक अ पैराग्राफ लाइक क्वेश्चन, इस तरीके से आप मान के चलो, लाइक अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। So we write the whole paragraph in नहीं नहीं, बस छोटा सा ये पैराग्राफ। कैसा है? that certain unsymmetrical molecules are found to solidify in crystalline state. Now, do you remember what crystalline meant? Yes sir. Solid. Ionic. Solid state. Right? They have a regular pattern of arrangement. Regular structure. They have a regular pattern of arrangement of atoms. Now, अगर कोई unsymmetrical molecule है तो उसके लिए एक crystalline form में आना is a challenge because the molecule is unsymmetrical. तो उसके लिए एक regular pattern of arrangement form करना, crystalline state form करना is a challenge. So what we find is actually that certain unsymmetrical molecules, they tend to solidify into crystalline state, into regular pattern of arrangement of atoms by dissociating into symmetrical ions. किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जैसे PCl5 का मॉलिक्यूल है। यू रिमेम्बर PCl5 का मॉलिक्यूल कैसा होता था?
Yes, sir. Expanded. Yes, sir. Trigonal bipyramidal. अब ये Yes, sir. unsymmetrical है, like in the sense there of course are certain elements of symmetry, I'm not denying that, but overall it's a molecule which has axial and equatorial positions, right? And इसका अगर मुझे ऐसे ही और molecules मुझे अरेंज करने, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज पैक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, Yes, sir. ठीक है। सो अगर मुझे इसका एक क्लोज पैक अरेंजमेंट, एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट बनाना होता है तो वो मेरे एक चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूल अपने आप में अनसिमेट्रिकल है। नाउ टू हेल्प विद दैट what we find is that ये जो molecule है, it breaks down into these ions, PCl6 minus and PCl4 plus, ऐसे ions ये बना लेता है, ठीक है। आपको नहीं पता था ये मैं बता रहा हूँ, it is not something which I was expecting कि अरे आपको ये पता होना चाहिए था, no, let's say मैंने ये आपको information बता दिया। अब can you tell me the hybridization and the shape of these ions, like what will be the hybridization of the phosphorus atoms in these molecules or ions, and what will be the shape of these ions? एक एक करके चैट में फटाफट PCl6 minus, तो क्या बताना शेप? shape of the ion, hybridization of phosphorus atom and the shape of the ion. All right, so यहाँ पर ठीक है, PCl6 minus is coming out as sp3d2 octahedral and Yes, sir. PCl4 And plus tetrahedral. Octahedral. is coming out to be tetrahedral, right? These are symmetrical ions. Yes, sir. एकदम मस्त material. Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल नोटिस करना, PBr5, इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो PBr4 प्लस एंड Br माइनस आयन में होता है, PBr6 माइनस नहीं बनता या नहीं मिलता। कैन यू टेल मी व्हाई? Their size. Sir, 90 degrees is strained angle and BR is big. Yes, sir. BR is large in size. Why? Yeah, plus BR6 6 BR के एटम्स एक फास्फोरस के अराउंड अकोमोडेट हो पाने आई थिंक चैलेंज हो रहा होगा। सर आयोडीन की तरह है क्या? ये कैसा है, बहुत बड़ा क्या? जैसे Pi5 भी नहीं मिलता ना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये XeF6 याद है आपको क्या था? Yes, sir. Exception. Yes, sir. XeF6 was distorted octahedral. Octahedral. Yes, sir. Yes, sir. Because of जब ये Sir, the solidify होता है, dynamic. we find it to be solidifying in form of XeF5 plus and F minus ions. तो इसमें xenon का hybridization और इनका ions का shape बता दो क्या रहेगा? 1 minute. Sir, over here, if it is an exception in VSEPR, it will also be an exception in hybridization, right? Yes, sir. इधर भी symmetric नहीं आ रहा. नहीं, so
हाइब्रिडाइजेशन तो वही काउंट होगा, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है बात करने में. Yes, sir. But then the shape. हाँ, shape is of course that exception. So the only like the shape is only the exception, right? मतलब बाकी सब ऐसा hybridization मतलब also हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 D2 ही होगा. सॉरी sp3 d3 D3. बोल सकते हो. Okay, sir. Sir, if all positions are identical, we say the molecule is symmetrical. हाँ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट है. So like there's no equatorial or axial. हाँ, that is symmetrical shape of molecule. Sir, so we are not expected to predict this, right? नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ और फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे जो अभी मतलब है वो आपसे मतलब है if you are able to compute the hybridization and the shapes. Okay, sir. That is my ask. So in the xenon example, it's becoming asymmetrical, right? In what example? The xenon one. Xenon, sorry. नहीं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मतलब even the lone pair has to be taken into account ना. Okay, sir. तो शेप ऑफ आयन में आपसे पूछूंगा तो यस स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, राइट. बट अल्टीमेटली द लोन पेयर विल आल्सो ऑक्यूपाई दैट पोजीशन इन द ज्योमेट्री. Yes. अच्छा, एक और एग्जांपल. N2O5 dissociating into NO2 plus and NO3 minus ions. तो इनमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन एंड नाइट्रोजन का ये बता दो क्या बोलते हैं शेप. सर NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना? NO2 प्लस. नो सर, ये NO2 प्लस है. NO2 plus दिया हुआ है. NO2 plus ion and NO3 minus ion. Sir, that is N2O5 or O3? N2O5.
All right. क्या आ रहा है आंसर? NO2 plus is sp Yes, sir. hybridized SP linear. linear and SP Yes, trigonal. sir. NO3 sir. minus is Trigonal sp2 planar, hybridized trigonal trigonal planar. planar. Yes, sir. ओके चलो ये एक और बता दो. Cl(O2) 6 जो है Cl2O6 in fact sorry Cl2O6 it breaks down into ClO2 plus and ClO4 minus. सर आप ये N2O5 का स्ट्रक्चर एक बार लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो? N2O5 का लोएस्ट स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया था क्या उस टाइम पर? नाइट्रोजन इसमें N2O5 में आई थिंक O सेंट्रल एटम रहता है. ठीक है. ऐसा कुछ रहता है ये O सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन का डेटिव बॉन्ड तो ऑक्टेट एक्सपेंड. हाँ मतलब डेटिव बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के डेटिव साथ. बॉन्ड्स बना दो इन ऑक्सीजन के साथ में. ओके सर. ठीक है. यस सर यस थैंक यू सर. सर टेट्राहेड्रल आएगा ना? So nitrogen is sp3 hybridized in N2O5, right? किसमें? सर N2O5. N2O5 में नहीं sp2 हाइब्रिड रहेगा ना इसका. लोन पेयर तो ये डेटिव बॉन्ड दे दिया ना. हाँ ओके ओके सॉरी. यस सर उसने दिया है एक्सेप्ट नहीं किया. ऑलराइट. ये ClO2 प्लस और ClO4 माइनस में क्या क्या आ रहा है? सर ये पहले SP2 का bent and तो sp2 लग रहा है और tetrahedral. ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है. ClO2 प्लस SP2 bent. SP linear. sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है. हाँ सर sp2 आ रहा है. राइट. एंड ClO4 माइनस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन And tetrahedral. Yes. टेट्राहेड्रल. यस सर. राइट. समझ में आ रहा है ये? यस सर यस. हाँ. सर ये ClO2 क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर सर है या उसका सर shape या bent होगा ना? Shape of ion will be V shape. However, if we take the account the electron Sir, pairs here- का arrangement, that will be trigonal planar. ठीक है. सर तो आप अभी इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हो ना? हाँ क्योंकि वो भी रोल प्ले करेगा ना. जो सॉलिड sir. रहेगा उसमें ये लोन पेयर भी एक जगह ऑक्यूपाई करेगा इसमें. यस सर. ठीक है. हाँ मतलब आपको अगर यहाँ पे शेप कमेंट करना है तो इसका शेप क्या रहेगा? वी शेप या N shape. N shape. यस सर वी शेप. ठीक है. This will be sp2 hybrid. Okay. Right. Now let's look at this next topic of hybridization of odd electron species. Right. अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये odd electron species के hybridization के हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे. राइट. तो यहाँ पे नोटिस करना जो स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला है that goes for a toss here. Yes. Because स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला में ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोला है कि इसको कैसे अकाउंट में लेना है. शुड बी काउंटेड एज लोन पेयर, शुड बी नॉट काउंटेड एज लोन पेयर, ये हम लोग नहीं जज कर पाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज दैट बेस्ड अपॉन द ज्योमेट्री. ठीक है. 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर. ये पहला पॉइंट है कि स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट what we do is we go the other way around. We first understand the geometry of that odd electron species, and based upon that we can then comment on the hybridization. तो इसमें experimental knowledge of geometry लगेगा. Before that
we will not be able to comment what would be the hybridization. समझ में आया? ओके सर। अच्छा, अब वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ कुछ एग्जांपल्स के केस में, एंड देन आप लोग मुझे बताना दैट व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट शुड बी देयर। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इज CF3 रेडिकल, राइट? कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर? 3 कितने ऑड इलेक्ट्रॉन है ऑन द सेम कार्बन पर? एक है, राइट? अब नोटिस करना, वी नो दिस इज एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू, CF3 हैज pyramidal shape. सर ये शेप हमें पहले से प्री रिक्विजिट है कि आपने भी बोला है? हाँ, ये मैंने बताया है, आपको नहीं पता था। ओके ओके, ठीक है, दिस इज एज आई एम सेइंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ओके, that is given to you. Now, based upon this experimental knowledge, can you tell me what should be the hybridization of carbon? sp2 sp2 sp3 दो ही आंसर पॉसिबल है, sp2 और sp3, तो तुम लोग sp3 मुझे sp3 ऐसा नहीं बता रहे हो। होता है ना। हाँ, कोई अगर महान आदमी हमारे बीच में sp या sp3d ऐसा कुछ बोलेगा तो फिर आई वुड बी क्यूरियस कि क्या सोच रहा है इंसान। सर sp3 is possible. sp3 और sp3 सर। sp3 सर अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करना, द करेक्ट आंसर इज sp3। कैसे हम लोग जज कर रहे हैं? सो So can you draw Lewis structure once? हाँ हाँ, सो यहाँ पर जैसा ये तो लोएस्ट स्ट्रक्चर तो ये हो गया ना, CF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। इट्स एन ऑक्टेट डेफिशिएंट स्पीशीज। Okay. अब मैं पूछ रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या होगा, राइट? सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, अपने पास दो चॉइस आते हैं, यस सर। sp2 या sp3। यस सर। द करेक्ट आंसर इज sp3। वो मुझे कैसे वैलिडेट हो रहा है मैं बताता हूं। सो इफ वी टेक sp2, right? Let's say if I do this, let me use a method of contradiction. So अगर मैं sp2 assume कर लेता हूँ तो what is it that should happen? ट्राइगोनल प्लेनर आ जाए, राइट? सो यहाँ पर आप नोटिस करना, यस, देन मैं मेरा ये जो डायग्राम होता था वो बना लेता हूँ, राइट? इसके हिसाब से कैसा रहेगा, sp2 अगर मैंने अज्यूम करा तो आप नोटिस कर रहे हो एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। हाँ सर, है ना? हाँ सर, यस सर। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे यस सर, और एक मेरा प्योर p रह जाएगा, हाँ सर, यस सर, प्योर है कि नहीं? हाँ सर, रह जाएगा। अच्छा, अब ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये 3 फ्लोरीन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, हाँ सर, बन रहा है। यस सर। राइट? तीन और जो हमारे मेरा पास। ऑड इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये वाले जो हैं दे विल फॉर्म
सिग्मा बॉन्ड विद फ्लोरीन, एंड ये जो मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर पी ऑड इलेक्ट्रॉन resides in प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा। Yes. Yes sir. अब Yes. इसके हिसाब से मेरी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। Yes sir. 3 sigma bond. ट्राइगोनल प्लेनर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐसे। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है? पी के अंदर। प्योर पी। प्योर पी के प्योर अंदर, पी। राइट। प्योर पी तो ऐसा रहता है ना, दोनों तरफ लोब है, ऊपर भी लोब है नीचे भी लोब है, राइट। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होंगे ना 90 डिग्री। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो तो ये शेप सपोर्ट कर रहा है, एंड इफ वी टेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन देन Yes sir. ये क्या सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे आप नोटिस करो, Yes sir. it is supporting pyramidal odd electron to be in hybrid orbital only. Yes sir. Yes. odd electron जो है hybrid orbital में ही है as per if we take sp3 hybridization। तो यहाँ पर ये मेरा कार्बन हो गया, राइट। इसके अराउंड ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब एंड बड़ा लोब छोटा लोब, राइट। यहाँ पे फ्लोरीन 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 और ये मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या शेप दिख रहा है यहाँ पे? पिरामिडल। मतलब ऑफ कोर्स ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, बट यू कैन सी द पिरामिडल शेप। हाँ सर। ट्राइपॉड टाइप है ना? हाँ, ट्राइपॉड टाइप पिरामिडल शेप बोलते हैं इसको। तो कौन सा जो हमारा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है कि CF3 हैज पिरामिडल शेप, इट सपोर्ट्स व्हिच हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3 समझ में आया? हाँ सर। सर आपने जो Can you explain the sp2 scenario again? Like how was that working? sp2 में एक s और 2p हाइब्रिडाइज होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट पे। Yes sir. राइट, ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होगा ना। Yes. बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, है ना। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल में ऊपर नीचे स्प्रेड है पूरा। बट यहाँ पर कैसा है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रोबेबिलिटी एक की तरफ ज्यादा है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ से छोटू लोब है ना। Okay sir. समझ में आया अभी? हाँ सर। अच्छा चलो Yes. तो मुझे फटाफट बता दो। सो ये वाला तो आप फास्ट बता सकते हो। CH3, ठीक है, CH3 रेडिकल जो है इसमें अगेन द सेम चॉइस हैपेंस, Yes sir. right? If you draw the Yes, sir. Lewis structure of it, right? Sigma 3 है and there is odd electron, right? अब यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर आपको नॉलेज दिया था, यहाँ पे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ that CH3 radical is found to be trigonal planar. sp2 sp2 सर अब तो आंसर पता है sp2 ना? लेना पड़ेगा। Yes sir. Right? Is found to be trigonal planar. हाँ सर sp2 This is experimental knowledge. Experimental knowledge given. So which hybridization is it supporting? sp2 sp Yes sir. Right. So it is supporting the hybridization sp2 जैसा हम लोगों ने sp2 ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, एक थोड़ा सा हटके लास्ट एग्जांपल, then we'll close our discussion for the day. NO2, that is an odd electron species. yes Yes sir. हाँ सर है। Right. एक odd electron. Right. ये दो स्ट्रक्चर याद है? Yes sir. हाँ सर याद है। राइट। तो सिग्मा कितने हो गए?
दो सिग्मा 2 और लोन पेयर 1, सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन। लोन पर 0 और इलेक्ट्रॉन एक। ऑड इलेक्ट्रॉन एक हो गया, हाँ सर एक। राइट। सो इसमें अब मेरा लाइक क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा। ठीक है, आपके सामने दो चॉइस आ रही होंगी, एक sp और एक sp2। हाँ जा यस सर। एक sp आ रही होगी, एक sp2 आ रही होगी, Yes, sir. राइट। अब यहाँ पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, दैट ONO बॉन्ड एंगल is 135 degree. sp2 sp2 This is the information that I am giving you. sp2 Experimental. सर सवाल में ये इन्फॉर्मेशन देंगे ना अगर ऐसा आया कुछ? हाँ, तो क्या आंसर रहेगा अब आपका? sp2 लग रहा है। sp2 sp2 makes sense. हाँ Had सही it लग रहा है। been sp तो फिर क्या एंगल होना चाहिए था? सर वही 180 ना, ये होना चाहिए था। 180 डिग्री। Had it been sp तो 180 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर p में रिसाइड करता, और yes. जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे दोनों बराबर होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो, गुड इनफ। हाँ तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। यस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन मोर डिटेल। Sir, we have So homework can you just today. scroll up? हाँ, यू हैव होमवर्क मैंने दिया ना पिछली क्लास में। सर आपने बहुत यस सर, पिछले क्लास में बहुत सारा अच्छा है। खासा दे दिया सर हाँ, तो यस अभी के लिए काफी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर उसमें। वो तो कम था। सर हो गया Sir, अभी मत दो। आराम से हो सर हो गया। और क्या? No, sir. हाँ सर 45 minutes. और ऊपर लूँ? वही सर। Sir, So do we बस have odd to electron वाला remember? copy करना है। Sir, do we have to remember these reactions? PCl5 is decomposing into all of that. क्या? नोट्स में देखो, जो मैं करा रहा हूँ ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सर मतलब आप कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन टाइप्स देते हो ना, तो वो एग्जाम में भी गिवन होगा या हमें याद रखना है वो? देखो, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट नोट्स में जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रख लेना। ओके ओके Okay, sir. लेट्स होप सो दैट एग्जाम में भी मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर समझना कि आज आप आ जाना। दिन खराब था, ये क्वेश्चन नहीं होना था हमसे। हाँ सर। हाँ सर। Sir, मुहूर्त अच्छा नहीं था। ठीक है। So are we going to do any chapter about molecular geometry where we can predict and like now you're giving us the shapes, right? Experimentally how it has been done and it's there. हाँ, So sir, can we also do it? Like will we be studying anything like that? well not really, but you will study some ideas, some explanations. जैसे यहाँ पर अभी CF3 और CH3 के बीच में, like the reason why CF3 molecule is highlighted to be sp3 hybrid and Yes, sir, CH3 we predicted sp2 that. is related to the electronegativity. Yes, sir. तो उसमें बोल देते हैं कि ऐसे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा पा रहा है। Right. सर CH3 वाला जो है वो sp2 वाला होगा ना? हाँ सर आपने उधर सर नीचे वो आपने कॉपी टिक पेस्ट और करने के बाद क्रॉस किया। sp2 से कुछ नहीं किया। माय बैड। ठीक है, बाय सर, थैंक यू। थैंक यू। Bye, So sir. Thank you, tomorrow sir. we have some doubt session with our teacher, sir. तो So उसके what साथ is कर लेना ना, डिस्कस कर लेना डाउट्स जो भी आपके हैं, और कुछ बच जाएंगे। बट किसके डाउट्स सर का है? किसके डाउट्स? जो भी तुम्हारी इच्छा है। जो भी डाउट्स Chemical- कहाँ से डाउट्स आएंगे सर? दिया ही सर डाउट्स कहाँ से लाए? Chemical bonding. सकते हो उनसे, सर केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे सर। जो इच्छा है तुम्हारा, तुम लाइक यू कैन पॉन्डर ऑन द। सर कुछ नहीं हो तो ज्ञान की Sir, बात there कर are लेंगे। some questions. हाँ सर, वही Sir, there are some questions in the booklet, like they are talking about reactivity and
like there is one particular question जिसमें they are asking कि how do we know if it is reacting more with a base or something. करेंगे करेंगे, आएगा धीरे धीरे टाइम। पूरा सर चैप्टर आपने वो होमवर्क में दे दिया था। तो होगा उसके पीछे कुछ आर्गुमेंट, अच्छा करेंगे डिस्कस। ठीक है। So I got disconnected for a minute. Can you tell again if such questions of odd electron species come in the exam, then how are we supposed to know? Because we don't know the experimental knowledge. जितना मैंने क्लास एग्जाम में पढ़ा, क्लास में एग्जांपल्स दिए, वो तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज आपने एक्वायर कर लिया है। Yes. वो तो आपको याद रखना है। हाँ। बाकी आपको एग्जाम में मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो आप फिर जज करना कि आज मेरा किस्मत का क्या सिनेरियो है, कैसी चल रही है, और उसके बेसिस पे फिर कमेंट कर देना। अच्छा सर, बाबा बढ़िया। Okay. ठीक है, चलो ऑलराइट, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। थैंक्स सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Tata, bye bye. बाय बाय।